Hello friends, good morning. Lastly, to finish the chapter, method of induction and binomial theorem. Today start the paper first, next chapter, determinant and matrices. Previous concept and this concept both are the different. We know that why study the binomial theorem. What is the use of the binomial? Here also first we know the why study the determinant, why study the matrices. Some polynomial equations its solution finding by using the matrix, by using the determinant. That's why here study the determinant. This is the application, but practically use of the determinant and matrices to develop, to find out the accuracy of algebraic operations. Means here algebra is one different part of your brain, and to improve its capacity, to improve the accuracy by using the determinant and matrices. That's why I study this. Okay, its founder was Cramer, Scotche and Hamilton. We know that we have studied in determinant, means in 10th standard Cramer's rule. ये determinant का ही part है. Okay, तो first one, start the first part of the chapter. First part is the determinant. First one, it's a definition and arrangement of elements. An arrangement of elements in two vertical lines. In two vertical lines is called as a determinant. Arrangement of elements in two vertical lines is called a determinant. Means, for example, element 1, 2, 3, 4 ये determinant है. Arrange element into vertical line. Okay, and Cramer's was designed the process to solve the determinant, to find the value of determinant. And what is the process? Actually here two horizontal line means two rows, two vertical line means two column, means order of this determinant is 2 by 2. Remember, every time order of determinant is the same, मतलब number of rows and number of columns are equal, वो equally होना चाहिए, तो ये हम determinant का value find out कर सकते हैं. 2 by 2 determinant है. Solution of the 2 by 2 is first one, write the product of first and last element means 1 into 4. Every time middle sign is a minus, write the product of remaining, matlab 2 into 3 is this type. This is the process to find the solution of determinant. Here its a product is a 4 minus 6, answer है minus 2. Sometimes the question solve the determinant means to find out the value of the determinant. तो हमें determinant का value find out करना है, तो ये value आएगा 4 minus 6, that is the minus 2. Suppose the second example elements are A, B, C, D. To find out the value of this, it's a value मतलब first and last element product A into D, middle sign always minus, next product of the remaining B into C. ये टाइप में होता है. थर्ड एग्जाम्पल, यह डिटर्मिनेंट 2 minus 1 3 0. एलिमेंट कुछ भी हो सकता है. समटाइम्स some elements are negative, some elements are 0. That time take the proper calculation to find out the value of determinant. Here solution of this, here first and last element product means a 2 into 0, middle sign always minus, write the product of remaining minus 1 into 3. 2 into 0 is a 0, minus into minus, plus 3 ones are 3, answer is a 3. ये उसका solution है, its answer is a 3. Okay. Number 4, suppose the elements are minus 1, minus 2, 3, 1. ये element है. Again 2 by 2. Its solution is minus 1 into 1 minus minus 2 into 3. Take the proper sign, minus 1 into 1 is the minus 1. Here minus into minus plus, 2 3s are 6. And what is the simplification? Minus 1 plus 6 is what? 5.
दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व द 2/2 डिटर्मिनेंट। बहुत सिंपल है, हमें 2/2 पहले आना चाहिए। एक बार 2/2 आ गए तो हमें 3/3 भी आ जाता है। चलो राइट वन बाय वन एग्जाम्पल 1 2 3 4। एग्जाम्पल नंबर 5 2 1 minus 2 1 0 3 minus 3 minus 1 2। Solve the determinant, expand the determinant, find the value of determinant. But here element, here how many horizontal line? 3 horizontal line. Same way here 3 vertical line, means order of determinant is the 3/3। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अभी इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अभी ये 3/3 डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है इक्वल टू, it's a process, concentrate this first one, write the first element. Here first element is a 2. Remove the row and column, this element available in that row and column, means this is including the first row and the first column. Remove that. Remaining here arrange 0 3 minus 1 2, ये remaining element. Next one to write the middle element, but every time change its sign. Available +1 change means -1, साइन मिडल का always चेंज होता है। ये क्रैमर्स ने डिजाइन किया है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कैसे फाइंड करना है वो क्रैमर्स ने डिजाइन किया है कि सेकंड का साइन चेंज करना है। नेक्स्ट वन same previous type, this is available in second column and first row. Remove that row and column. Remaining here 1 3 minus 3 2. Okay, next write the third element with sign -2, as it is -2 आएगा। This is available in third column and first row. Remove that, means here 1 0 -3 -1, ये एलिमेंट है। अभी ये 2/2 डिटर्मिनेंट आ गया। अभी ये सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप समझ में आना चाहिए। राइट द फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट। 0 3 -1 2 ये अरेंज किया। चेंज द साइन ऑफ सेकंड, सेकंड एलिमेंट लिखना है बट चेंज इट साइन। ये प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। सेम again here remove the first row and second column, remaining 1 3 -3 2। Write the third element -2, again same way, this is including the third column and first row. Remove that, 1 0 -3 -1। Next one to solve this, here 2 in bracket, 0 -3 +3 -1 in bracket, 2 minus minus मतलब प्लस, 3 3 are 9, -2 in bracket, ये प्रोडक्ट आएगा -1, मिडल साइड माइनस। 0 into any element 0, ये क्लियर होना चाहिए। टू डेवलप द अल्जेब्रिक ऑपरेशन, यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें सोचना पड़ रहा है माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, क्या कंफ्यूजन होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा, उससे एक्यूरेसी लाना है हमें। 2 multiply, here addition is the 3, -1 here addition is the 11, -2 into -1, here product is a 6, this is the -11, this one is the +2, minus into minus is the plus। ये 6 + 2 होता है 8, 8 - 11, आंसर इज -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट। ये प्रोसेस है 3/3 का, मतलब हमें ऐसे सॉल्व करना है 3/3 डिटर्मिनेंट। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल 6 नंबर एग्जांपल, 3 - 1 2 2
1 0 -2 -1 -3 ये एलिमेंट है. Means again a 3 by 3 determinant to solve the determinant. अभी आप लोग बताओगे कैसे सॉल्व करना ये. फर्स्ट वन, द फर्स्ट एलिमेंट 3 including the first row, first column, remove that row and column. Remaining arrange in 2 by 2 determinant 1 0 -1 -3 ये टाइप में होता है. टू चेंज द साइन ऑफ मिडल एलिमेंट ये माइनस का होगा ++1. सेम प्रीवियस टाइप. दिस इज इंक्लूडिंग द फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, रिमूव दैट. अरेंज द रिमेनिंग एलिमेंट 2 0 -2 -3. बहुत इजी है. मिडल का साइन चेंज करना है, वो कौन से रो एंड कॉलम में उसे हटा दो, रिमेनिंग एज इट इज नोट करना है. राइट द थर्ड एलिमेंट एज इट इज साइन मतलब विथ साइन. हियर नो साइन मतलब ++2 आएगा. दिस एलिमेंट इंक्लूडिंग द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, रिमूव दैट. रिमेनिंग हियर 2 1 -2 -1 ये टाइप में आएगा. Solve the 1 by 1 determinant means 3 as it is in bracket. Product of the first and last -3. Middle sign -0 into any element 0. +1 in bracket. Here product -6. Middle sign minus. Again 0 into any element is a 0. +2 in bracket. It's a product -2. Middle sign minus. 1 into -2 is the -2 minus हो गया +2. ये समझ में आना चाहिए. मिडल साइन ऑलवेज माइनस. माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस होता है. हियर 3 इंटू -3 +1 इंटू -6 +2 इंटू -2 +2 0. ये प्रोडक्ट आएगा -9. दिस वन इज व्हाट -6. प्लस इंटू माइनस इज द माइनस. 0 इंटू एनी एलिमेंट इज द 0. एंड व्हाट इज इट्स सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन आएगा -15. दोनों साइन सेम रहा तो एडिशन करके वही साइन दिया जाता है. 9 + 6 15. अवेलेबल साइन माइनस. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज द -15. ऐसे ये डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमने स्टडी किया पहले 2 by 2. अभी हमने स्टडी किया 3 by 3. ओके ये प्रोसेस है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. नोट डाउन करो फास्ट. सम नंबर 6. To start the next point of the chapter, minor and cofactor. To find the minor and cofactor of the determinant. ये क्या होता है, ये कैसे फाइंड करना है, ये अभी हमें स्टडी करना है. सपोज द एग्जाम्पल फर्स्ट 1 2 3 -1 ये डिटरमिनेंट है. इसका हमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है. दिस इज द 2 by 2 डिटरमिनेंट. Its a place numbers are. This is available in first row and the first column. Place number A11. This is available in first row and second column A12. First row, second column. And this element, this is available in second row and first column. Second row, first column A21. This one is the second row, second column A22.
ये है प्लेस नंबर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड द प्लेस नंबर, बहुत इजी है ये। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये प्लेस नंबर है। ये प्लेस नंबर के हमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। मीन्स द फर्स्ट वन m11, राइट द रो वाइज m11, नेक्स्ट m12, m मतलब माइनर, नेक्स्ट रो में आता है 21 मतलब m21, माइनर ऑफ 21, नेक्स्ट वन माइनर ऑफ 22, यह है माइनर 11 12 21 22। उसके बाद माइनर के बाद हमें फाइंड करना है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 12, कोफैक्टर ऑफ 21 एंड कोफैक्टर ऑफ 22, इसे हमें फाइंड करना है। माइनर ऑफ 11, 11 मतलब रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या बच रहा है -1। माइनर ऑफ 12, 12 मतलब रिमूव द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग है 3। माइनर ऑफ 21, रिमूव द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट हियर 2 एंड m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, व्हाट इज द वैल्यू 1, इससे होता है 22 मतलब रिमूव द सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचेगा 1, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है 2। ये पहला एलिमेंट इंडिकेट करता है रो एंड सेकंड वन इज द कॉलम। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, ये समझ में आना चाहिए। 1 1 ये -1, 1 2 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचेगा 2 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, व्हाट 1, इसे फाइंड करना है ऑल द माइनर्स। Using minor find the cofactor, formula of cofactor -1 raised to sum of the place number 1 plus 1 multiply by the minor of 1 1। Here -1 raised to place number summation 2, m11 का वैल्यू है -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 into -1 आंसर -1। ये -1 रेज टू 1 plus 2 सम ऑफ द प्लेस नंबर इनटू माइनर 1 2, -1 का क्यूब मल्टीप्लाई m12 का वैल्यू है 3, -1 का क्यूब माइनस इंटू 3 -3। ये -1 रेज टू 2 plus 1 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 1, -1 का क्यूब m21 का वैल्यू है 2, ये -1 का क्यूब -1 इंटू 2 आएगा -2। ये -1 रेज टू 2 plus 2 इंटू m22 -1 रेज टू 4 इंटू m22 का वैल्यू है 1, आंसर आ जाता है 1। ये है कोफैक्टर ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। क्या चेंज हुआ माइनर एंड कोफैक्टर में? शॉर्टकट में इफ एडिशन ऑफ द प्लेस नंबर इज ऑड देन चेंज द साइन इन अ कोफैक्टर। ये 1 plus 2 3 एडिशन है, 2 plus 1 3, बोथ आर द ऑड। ऑड रहा तो ये साइन चेंज होगा, जो अवेलेबल है उसके अपोजिट आएगा। देखो ये +3 का -3 है, ये 2 का -2 है, बट पहला एंड लास्ट वो एज इट इज रहा है क्योंकि उसका समेशन इवन है। शॉर्टकट में हमें बताया मैंने आप लोगों को कि सम ऑफ द प्लेस नंबर इज ऑड, दैट टाइम चेंज द साइन, अदरवाइज एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है माइनर एंड कोफैक्टर में। यहाँ पे ऑड आया तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन चेंज होता है। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2/2 डिटरमिनेंट। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 - 2 1 0 ये डिटरमिनेंट है, हमें इसके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। अभी फाइंड करना है फर्स्ट माइनर, राइट द रो वाइज, मतलब ये 1 1 प्लेस है m11,
ये 1 2 प्लेस है m1 2, सेकंड रो में आता है m21, नेक्स्ट आता है m22, ये टाइप में होता है। 1 1, remove the first row first column, what is the value? 0. 1 2, first row second column, what? 1. m21, second row first column, -2. m22, second row second column, बचेगा ये 3। ये वैल्यूज है माइनर के। यूजिंग माइनर टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 2 1 एंड कोफैक्टर ऑफ 2 2। 1 1 minus 1 raised to sum of the place number 2 multiply by minor का वैल्यू 0, 0 into any element 0। Here -1 raised to sum of the place number 3 multiply minor 1 and product आता है -1। ये -1 raised to 3 multiply by minor, it's a value -2। -1 का क्यूब माइनस into minus, ये +2। Here -1 raised to sum of the place number is a 4 multiply by minor is the 3, आंसर आएगा +3। These are the cofactors। ये प्रोसेस है to find the minor and cofactor। If you compare the minor and cofactor, that time middle to minor sign change in a cofactor, other as it is है, चेक करो। यहाँ पर भी वही हमने स्टडी किया, यहाँ पर भी वही होता है। Why here change? Here sum of the place number is odd, that's why here change the sign। Write down one by one to find the minor and cofactor। ऐसे हमें माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है। हमें जल्दी जल्दी 11th का पार्ट कंप्लीट करना है। 5 अप्रैल से हमें 12th स्टार्ट करना है, तब तक 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो 10% बचेगा वो एक्स्ट्रा संडे लेक्चर लेके वो खत्म कर देंगे। तो थोड़ा सा अभी सीरियसली आप वर्क करो। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये फिर से ऑफलाइन नहीं होगा, अभी इतना टाइम नहीं है, तो आपको ध्यान देना ही है। आप प्रॉपर होमवर्क भी करना है क्योंकि आपको घर पे ही रहना है। क्लास होने के बाद जो होमवर्क है वो होमवर्क कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, उसके डाउट्स है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से पूछो, कोई इशू नहीं है। बट अभी आपको अभी तो भी घर पर ही रहना है, मतलब घर पे रहकर आपको ये ऑनलाइन अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। जैसे पहले जो ऑनलाइन पढ़ा है वो हमने ऑफलाइन लिया, हमें टाइम था, बट अभी उतना टाइम बचा नहीं है क्योंकि 12th के लिए भी हमें प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए आपके भी कोई फ्रेंड्स है किसी को 12th ज्वाइन करना है 12th में क्लास, तो उन्हें बताइए कि 5 अप्रैल से अभी 12th स्टार्ट होने वाला है। Here study the minor and cofactor of 2/2 determinant। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन 3/3 डिटरमिनेंट टू फाइंड आउट द माइनर एंड कोफैक्टर। ये हो गया 2/2, अभी 3/3 देखना है। एग्जाम्पल 3 1 2 1 3 1 3 2 2 1, ये डिटरमिनेंट है। दिस इज a 3/3 determinant to find out the minor and cofactor। फर्स्ट वन, राइट द प्लेस नंबर्स। हमें प्लेस नंबर पहले समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 A13, यह आएगा A21 A22 A23। दिस वन इज A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। दीज आर द प्लेस नंबर्स। ये प्लेस नंबर्स है। अभी हमें एवरी प्लेस का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। वी नो दैट
अरेंज रो वाइज मीन्स राइट द माइनर ऑल रो वाइज. फर्स्ट रो में 1 1 1 2 1 3 मीन्स माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 3 ऐसे आएगा फर्स्ट रो. अभी सेकंड रो के एलिमेंट देखो, प्लेस नंबर माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 3 ये टाइप में आएगा. थर्ड रो के प्लेस नंबर लुक एंड राइट द 1 by 1 माइनर, माइनर ऑफ 3 1, माइनर ऑफ 3 2 and माइनर ऑफ 3 3 is this type. माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 3, माइनर ऑफ 3 1, minor of 3 2 and last minor of 3 3. To find out all the minors, अभी 1 1 minor of 1 1, remove the first row first column 1 3 2 1. Concentrate करना है 1 2, remove the first row second column 3 3 2 1. 1 3 first row third column 3 1 2 2, 2 1 second row first column 2 1 2 1, 2 2 second row second column 1 1 2 1. प्रॉपर ध्यान देना है. 2 3 second row third column 1 2 2 2, 3 1 third row first column 2 1 1 3, 3 2 3 2 मतलब third row second column. ये remove the third row and second column 1 1 3 3, 1 1 3 3, third row third column 1 2 3 1. To find the value of every determinant. ये determinant की हमें value find out करना है. Write all the minor here. Find the value of 1 by 1 determinant. We know the process. First and last element का first product means 1, middle sign minus 3 2s are 6. ये सब लोगों को आता है. 1 into 1 is the 1, middle sign minus. हम साइंस में आए हैं. अभी नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करो, एग्जाम्पल लिखो, सॉल्व करो, चेक करो, धीरे धीरे आता है. 1 minus 6 ये आता है -5. ये 3 1s are 3 minus 3 2s are 6 आएगा -3. 3 2s are 6 minus 2 equal to आएगा 4. नेक्स्ट वन ये 2 1s are 2, मिडल साइड माइनस 2 into 1 2, ये आंसर आता है 0. ये 1 into 1 minus 2 आंसर है -1. नेक्स्ट वन ये 1 into 2 is a 2 minus 2 2s are 4 आंसर है -2. ये 2 3s are 6 minus 1 आंसर है 5. Here next one 1 3s are 3 minus 3 आंसर है 0. नेक्स्ट वन here 1 minus 6 आंसर है -5. ये 1 by 1 डिटर्मिनेंट का मैंने वैल्यू फाइंड किया. दीज आर द वैल्यूज ऑफ माइनर, ऑल द माइनर्स. टोटल 9 एलिमेंट से मतलब हमें 9 माइनर मीन्स 9 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है. अभी यूजिंग द माइनर टू राइट द कोफैक्टर. अभी हमें सबके कोफैक्टर लिखना है. मीन्स फर्स्ट वन C11, C12, ये 1 1 1 2, ये m की जगह पे सिर्फ C लिखना है. C13, C21, C22, C23, ये है C31, C32 एंड लास्ट वन है C33. ये ऑल कोफैक्टर है. अभी हमें सबका वैल्यू लिखना है.
Cofactor of 1 1 minus 1 raised to sum of the place number 2 multiply minor a minus 5. माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू माइनस 5 होता है माइनस 5. माइनस 1 का सम ऑफ द प्लेस नंबर 3 मल्टीप्लाई माइनस 3. ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 3 हो जाता है प्लस 3. Here minus 1 raised to sum of the place number 4 multiply by minor का वैल्यू है 4, आंसर आता है 4. ये माइनस 1 रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय माइनर है 0 0 इंटू एनी एलिमेंट होता है 0. ईयर माइनस 1 रेज टू सम ऑफ द प्लेस नंबर 4 मल्टीप्लाई माइनर -1, आंसर है -1. माइनस 1 रेज टू सम ऑफ द प्लेस नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनर -2. ये -1 इंटू -2 होता है +2. minus 1 raised to sum of the place number 3 plus 1 is a 4 multiplied by 5. Minus 1 raised to 4 is the 1. 1 into 5 is a 5. Minus 1 raised to sum of the place number 5 multiplied by minor. ये minor का वैल्यू 0 है. 0 into any element 0 ही होता है. Minus 1 raised to 6 multiplied by minus 5. ये पावर इवन है मतलब 1 1 इंटू -5 ये हो गया -5. दीज आर द कोफैक्टर्स. ये हो गए कोफैक्टर. क्या चेंज हुआ माइनर एंड कोफैक्टर में वो भी एक बार लॉजिकली समझ में आना चाहिए. मैंने 2/2 में बताया था इफ प्लेस नंबर इज ऑड देन चेंज द साइन. कहा प्लेस नंबर ऑड समेशन आता है 1 + 2 3 ऑड है, 2 + 1 ऑड है, 2 + 3 ऑड है, 3 + 2 ऑड है, मतलब अल्टरनेट साइन चेंज है. खत्म कहानी. ये -5 एज इट इज है. अभी ये साइन चेंज होगा. देखो ये एज इट इज है, इसका साइन चेंज बट 0 के लिए 0 ही है. ये एज इट इज रहेगा, यहाँ का साइन चेंज होगा. ये एज इट इज रहेगा, यहाँ का साइन चेंज होगा बट वो 0 था. ये एज इट इज रहेगा. अल्टरनेट साइन चेंज होता है 3/3 में कोफैक्टर में. अदरवाइज यही वैल्यू एज इट इज यहाँ पे पेस्ट है. सिर्फ अल्टरनेट साइन चेंज करो. ये माइनस का प्लस, यहाँ पे माइनस होता तो वो भी प्लस, यहाँ माइनस का प्लस, ये प्लस होता तो माइनस, बट ये 0 है तो 0 रहेगा. ये है माइनर ऑफ द 3/3, कोफैक्टर ऑफ 3/3. ऐसे फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर. प्रॉपर एक्यूरेट हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए. एक भी साइन गलत दिया तो आंसर गलत आता है. चलो राइट 1 by 1 ऑल द माइनर एंड कोफैक्टर. जल्दी जल्दी नोट करना है. Same type you try the next one, number 4. To find the minor and cofactor of the determinant. 2 1 0 -1 -2 -3 1 2 1. एलिमेंट कुछ भी हो सकता है. फाइंड आउट इट्स माइनर एंड कोफैक्टर. अभी हमें इसके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है. पहले हमने स्टडी किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/2 डिटरमिनेंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट.
इसके बाद में हमने स्टडी किया टू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2/2। अभी हमने स्टडी किया टू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 3/3। आपके पास बहुत वक्त है, घर पे आप बैठे हैं, प्रैक्टिस करो, आपका टेक्स्ट बुक देखो, नोट्स देखो, यही टाइप के क्वेश्चन देखो और उसका हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखना है हमारा आंसर आता कि नहीं। अच्छी तरह आ गया, अच्छी तरह सॉल्व किया, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड कर सकता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। फोर्थ वन आप सॉल्व करोगे, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। To find the value of 1/1 minor, 1/1 cofactor, कैसे फाइंड करना है वो मैंने अच्छे से बताया यहाँ पर। हो गए फोर्थ वन, माइनर ऑफ 1/1, माइनर ऑफ 1/2, माइनर ऑफ 1/3, माइनर ऑफ 2/1, माइनर ऑफ 2/2, माइनर ऑफ 2/3, माइनर ऑफ 3/1, माइनर ऑफ 3/2, माइनर ऑफ 3/3, माइनर ऑफ 1/1, रिमूव द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये -2 + 6, -2 + 6 होता है 4। माइनर ऑफ 1/2, रिमूव द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 + 3 2। माइनर ऑफ 1/3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 + 2 होगा 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 - 1 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आएगा -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम -6, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 + 1 -3, ये माइनर की वैल्यू है। एंड कोफैक्टर में सिर्फ ये होगा -2, ये -2, ये 4 एज इट इज, 0 एज इट इज, अल्टरनेट साइन चेंज, -1 2 -3 -3 + 6 -3, ये कोफैक्टर की वैल्यूज है।
लॉजिकली हमें समझ में आना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट हो प्रॉपर ब्रेन में फीड करना है। ये है ऑल माइनर, यूजिंग माइनर फाइंड द कोफैक्टर, ये वैल्यूज है कोफैक्टर का। यू राइट द एवरी स्टेप, डोंट राइट इज दिस पैटर्न, आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना है जो मैंने प्रीवियस सम में किया है। चलो कम ऑन, नेक्स्ट टाइप, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर ने डिजाइन किया ये मेथड, तो हमें वही रूल से ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है, हमें क्रैमर्स रूल मतलब डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है। व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट वन, राइट द एलिमेंट ऑफ डी, डी डिटरमिनेंट। in element in determinant d, write the coefficient of x y z sequence, मीन्स फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1, ये फर्स्ट रो में आएगा 1 1 1। सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन 1 -1 1। थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट 1 2 -1, ऐसे आएगा। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1, सेकंड रो में 1 -1 1, थर्ड रो में आएगा 1 2 -1। ये आ गया डी, ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। नेक्स्ट वन डी एक्स, डी एक्स इसका मतलब ये एलिमिनेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड इट रिप्लेस बाय आरएचएस कांस्टेंट। एलिमिनेट कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब शॉर्टकट में रिमूव द फर्स्ट कॉलम ऑफ d and this first column replace by RHS constant। फर्स्ट कांस्टेंट है 6 कॉलम में, सेकंड 2, थर्ड है 2, सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज 1 -1 2 1 1 -1। x के कोएफिशिएंट मतलब ये 1 1 1, ये फर्स्ट कॉलम में, उसकी जगह पे हमें आरएचएस के कांस्टेंट लिखना है। ये है dx। सेम वे dy, चेंज द सेकंड कॉलम ऑफ d, इट रिप्लेस बाय आरएचएस कांस्टेंट। d का सेकंड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 1, second column it replaced by RHS constant 6 2 2, third column as it is 1 1 -1, यह है dy। नेक्स्ट वन dz, डिटरमिनेंट ऑफ z, z मतलब ये थर्ड कॉलम a1, ये 1 -1, ये remove the third column of d and it replaced by RHS constant, means the first second column as it is 1 1 1 1 -1 2 एंड थर्ड कॉलम में आएगा 6 2 2, ये टाइप में। एंड सॉल्व द एवरी डिटरमिनेंट, हमें एवरी डिटरमिनेंट अभी सॉल्व करना है। एवरी डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन डी, डी मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, इक्वेशन रो वाइज। dx, remove the first column of d, it replaced by RHS constant। dy, change the second column of d, it replaced by RHS constant। dz, remove the third column of d, it replaced by RHS constant। This is the process to arrange the element in one by one determinant, and this is the Cramer's rule। Solve one by one determinant and to find the value of x, y, z by using the Cramer's rule, x equal to formula of x dx upon d, y equal to होता है dy upon d and z equal to है dz upon d। ये है by using the Cramer's rule। ओके, ऐसे हमें फाइंड आउट करना होता है। अभी d सॉल्व करना है 1 इन ब्रैकेट, ये है 1 -2, -1 इन ब्रैकेट -1 -1, +1 इन ब्रैकेट 2 -2 +1, ये 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -2 +1 मल्टीप्लाई बाय 3 and its simplification -1 +2 +3, 3 + 2 5 -1, इसका वैल्यू है 4, d का वैल्यू आ गया 4। अब ये dx सॉल्व करना है 6 इन ब्रैकेट,
ये 6 का रो एंड कॉलम कैंसल, ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप लिखो। कुछ लोगों को ये आएगा नहीं। 1 ये फर्स्ट एलिमेंट, 1 का रो एंड कॉलम कैंसल, ये रो एंड कॉलम कैंसल, -1 1 2 -1, चेंज द साइन ऑफ सेकंड -1, फिर से ये 1 का रो एंड कॉलम कैंसल, ये कॉलम ये रो कैंसल, 1 1 1 -1 +1 इन ब्रैकेट, +1 इन ब्रैकेट, 1 -1 1 2, ये टाइप में आएगा। अभी हमें ये सॉल्व करना है। 1 इन ब्रैकेट, वी नो द प्रोसेस ऑफ 2/2, ये दोनों का पहले प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस इज अ प्लस, मिडल साइन -2 1s are 2, -1 in bracket, ये प्रोडक्ट -1 मिडल साइन -1 into 1 is the 1, +1 in bracket, ये प्रोडक्ट 2 मिडल साइन माइनस, ये -1 माइनस +1, ये एक्यूरेसी आना चाहिए, ये कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई -1, ये सब्ट्रैक्शन, -1 into -2 +1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, आगे लिखता हूं मैं क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है। यहाँ पर ये होता है -1 माइनस इंटू माइनस +2, ये आएगा +3, 5 -1 ये आएगा 4, ये उसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है 4। अभी dx सॉल्व करना है। ये dx 6 इंटू डिटर्मिनेंट, 6 का रो एंड कॉलम कैंसल, -1 1 2 -1, change the sign of second, -1, ये 1 का कॉलम रो कैंसल, 2 1 2 -1, राइट द थर्ड एलिमेंट +1 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 का कॉलम एंड रो कैंसल, 2 -1 2 2, ऐसे आएगा। अब ये सॉल्व करना है। 6 इन ब्रैकेट, ये दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली 1 मिडल साइन -2 1s are 2, -1 in bracket, -2 middle sign -2 into 1 is a 2, +1 in bracket, 2 2s are 4, middle sign -2 into -1 -2 minus +2, ऐसे हो गया। इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -1 -1 मल्टीप्लाई -4 +1 मल्टीप्लाई बाय 4 +2 is the 6, and to write its value is क्या आ रहा है? इट्स वैल्यू 6 इंटू -1 -6, ये आ रहा है +4 +6 +6 कैंसल है, इसका आंसर आ रहा है +4। ऐसे हमें वो फाइंड आउट करना है। अभी फाइंड करना है dy, स्पेस का मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, dy, चेंज द सेकंड कॉलम ऑफ d, ये 1 1 1 एज इट इज है, सेकंड कॉलम 6 2 2, थर्ड कॉलम 1 1 -1, इससे आएगा, ये आ गया dy। अभी हमें ये सॉल्व करना है। ये पहले d सॉल्व किया, सेकंड ये dx सॉल्व किया, अभी हम सॉल्व करते हैं dy हमें सॉल्व करना है। पहला एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट, 1 का रो एंड कॉलम कैंसल है, 2 1 2 -1, चेंज द साइन ऑफ सेकंड -6, फिर से वही 6 का रो एंड कॉलम कैंसल है, 1 1 1 -1, राइट द थर्ड एलिमेंट विथ साइन, साइन नहीं मतलब +1, फिर से 1 का कॉलम एंड रो कैंसल है, ये एलिमेंट 1 2 1 2 एलिमेंट है। सॉल्व द डिटरमिनेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये प्रोडक्ट -2 मिडल साइन -2 1s are 2, -6 मल्टीप्लाई, ये -1 -1 +1 मल्टीप्लाई 2 -2, ऐसे आएगा। ये 1 मल्टीप्लाई -2 -4 -6 into -2 1 into 0, this product is what? -4,
माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 जार 12, 1 इंटू 0 इज 0, 12 माइनस 4, ये आंसर आ रहा है 8। dy का वैल्यू है 8। डी डी एक्स डी वाई फाइंड किया हमने, आगे फाइंड करते हैं dz। चेंज द थर्ड कॉलम ऑफ डी, डी का थर्ड कॉलम चेंज करना है। पहला कॉलम है 1 1 1, सेकंड कॉलम है 1 माइनस 1 2, थर्ड कॉलम इट रिप्लेस बाय RHS कांस्टेंट 6 2 2, ऐसे आएगा। अभी फिर से ये सॉल्व करना है। ये 1 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, 1 का रो एंड कॉलम कैंसल, माइनस 1 2 2 2, चेंज द साइन ऑफ मिडल, माइनस 1, फिर से उसका रो एंड कॉलम कैंसल, 1 2 1 2, ऐसे आएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड एलिमेंट विथ साइन, साइन नहीं मतलब प्लस 6, 6 का कॉलम एंड रो कैंसल है, 1 माइनस 1 1 2, प्रॉपर लिखा तो कभी भी गलत नहीं होगा। अभी हमें ये सॉल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट माइनस 2 मिडल साइन, माइनस 2 2 जार 4, माइनस 1 इन ब्रैकेट 2 माइनस 2, प्लस 6 इन ब्रैकेट 2 माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1। Here 1 multiply minus 6 minus 1 multiply 0, 6 multiply 3, ये प्रोडक्ट माइनस 6 माइनस 0 प्लस 18, 18 माइनस 6 आता है 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ dz, ये dz का वैल्यू है 12। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय 1 डिटर्मिनेंट, dz का वैल्यू मिल गया हमें 12, dy का वैल्यू मिल गया हमें 8, dx का वैल्यू है 4 एंड d का वैल्यू अगेन 4। ये d dx dy dz फाइंड किया है, d dx dy एंड लास्टली dz। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ x y z। नाउ x इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x, dx बाय d, dx का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आता है 1, y इक्वल टू है dy अपॉन d, dy का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर है 2, z इक्वल टू dz अपॉन d, यह है 12 बाय 4, आंसर आता है 3। एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया हमें 1 2 एंड 3। Check your answer is correct or not. Again, put in the given LHS, given equation LHS. If to form the RHS, that time the values are correct. Put in any one equation. Not necessary only first. कोई भी इक्वेशन में पुट किया तो हमें RHS मिलना चाहिए। 1 प्लस 2 प्लस 3, एडिशन करो 6 आ रहा है। 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इज 2, यहाँ पर भी पुट करो RHS मिलेगा। मीन्स टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन दैट टाइम द वैल्यूज आर करेक्ट, तो ये करेक्ट आएगा, तो ये हमारा जो हमने फाइंड किया वो करेक्ट है। मीन्स फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ d, सेकंड dx dy dz, write the formula of x y z, put the value, find out the answer, check the answer करेक्ट के नहीं आप खुद चेक करना है। वो LHS गिवन इक्वेशन के LHS में पुट करके देखो, RHS मिलना चाहिए। मीन्स जब RHS आएगा तो समझ लो आपने करेक्ट आंसर फाइंड किया है। ओके, दिस इज द क्रैमर्स रूल। चलो नोट डाउन करना है, ये क्रैमर्स रूल है। एज इट इज नोट करना है हमें, ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। डिटरमिनेंट का इतना ही पार्ट है। कौन कौन सा? फर्स्ट टू एक्सपांड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 2 by 2 3 by 3, उसके बाद टू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर 2 by 2 3 by 3 एंड सॉल्व बाय क्रैमर्स। ये इतना ही पार्ट इस साल के सिलेबस में है। उसके जो एप्लीकेशन है, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो अभी नहीं है, तो इतना ही पार्ट हमें अच्छे से करना है।
मतलब आज का आपका होमवर्क है, ये जो पार्ट है उसके जो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है वो आपको घर पे सॉल्व करना ही है, क्योंकि अभी ये फिजिकली फिर से ऑफलाइन में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उतना वक्त अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी जो हो रहा है वही फाइनल है, वही आपको अच्छी तरह करना है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करना है। Same type, you try the next one. Second example, x plus y minus 2z equal to 10. सेकंड इक्वेशन है 2x plus y minus 3z equal to -1. एंड थर्ड वन है 4x plus 6y plus z is equal to 2. ये हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। आप कर सकते हैं, ट्राई करो। चलो सेकंड वन सॉल्व करो। सॉल्व बाय द क्रैमर्स रूल, अभी सब लोगों को आना चाहिए। फर्स्ट वन डी, डिटरमिनेंट dx dy dz। dx मतलब रिमूव द फर्स्ट कॉलम ऑफ d, it replaced by RHS constant. dy change the second column, remove the second column of d, it replaced by RHS constant. And same way dz, remove the third column of d, पहले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो, प्रॉपरली वन बाय वन डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। फाइनली राइट द फॉर्मूला x इक्वल टू dx बाय dy dy बाय dz dz बाय d मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। वन बाय वन सॉल्व करना है, अब भी करना है।